नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है, इट सेलेक्टेड 22 कमिटीज टू डील विद डाइवर्स टास्क्स ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इसने 22 कमिटीज को पहले सेलेक्ट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following gave the idea of a constituent assembly for India in the year 1934? एमिन रॉय। जो आपका एमिन रॉय था, he gave the idea of a constituent assembly for India in the year 1934। एमिन रॉय ने दिया था, ठीक है। एमिन रॉय is known as the father of Indian communism, okay, and he was a creator of Mexican Communist Party and the Communist Party of India, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when was the first constituent assembly election held in India? The answer is 1946। 1946 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन इंडिया में हुई थी। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। इंडियन नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? The answer is the Government of India Act 1935, GOA जिसको बोलते हैं। Government of India Act 1935 का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है in framing the Indian Constitution, okay? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज, क्या क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, can be presented either in Lok Sabha or Rajya Sabha, can be presented only in Lok Sabha, can be presented only in Rajya Sabha, can be presented by the largest party of opposition in Lok Sabha। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन पेश करता है? इट कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन द लोकसभा। जैसे जो विपक्षी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा मोशन होता है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट इन द इलेक्टेड हाउस। लोकसभा और विधानसभा में ही जो है वहीं पे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाता है, एंड नॉट इन द अपर हाउस, जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं। इट इज अ स्पेशल पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द अपोजिशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय Rajya Sabha, by the people, by the members of both the houses of parliament, or by parliament and legislative assemblies of states? The answer is by the members of both the houses of parliament. Vice President of India is elected by the members of both the houses of parliament. Okay. Next question है, how many times the President of India can seek re-election to his post? मतलब वो कितनी बार जो इंडिया के आपके राष्ट्रपति हैं वो अपनी पोस्ट को बार बार इलेक्शन के लिए सीख कर सकते हैं? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, any number of times, कई बार। Under the Constitution of India there shall always be a President of India, Article 52 कहलाता है। He holds the highest elective office in the country. The President is elected by the Electoral College, जिसमें elected members होते हैं of both the houses of Parliament and elected members of legislative assemblies, ठीक है। Indian President, he is the head of the state. He is a part of Union Executive. There is no direct election for the Indian President. President is elected for 5 years. He sits in the office even after the completion of 5 years, given no new election has taken place or no new president has been elected till then. So he can also be re-elected. There is no cap in his re-election. Okay. Next question है, 0 hour in the working of Indian Parliament means, 0 hour का मतलब क्या होता है? फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, और द व्हेन प्रिविलेज मोशन आर एक्सेप्टेड, और द आवर बिफोर क्वेश्चन आवर, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर। तो आंसर क्या होगा? द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, उसको हम बोलते हैं 0 आवर, ठीक है। 0 hour, it is introduced in the parliament in 1962 and it is the time when members of parliaments can raise an issue of urgent public importance, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट by
प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम रिमूव कर सकते हैं बाय द पार्लियामेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following, okay, which one of the following is a correct description of union cabinet? ये out of the given options the answer will be the second one, the primary function। जो मेन फंक्शन होता है, प्राइमरी मतलब मेन फंक्शन, जो पहला फंक्शन होता है कैबिनेट का, टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री एक अच्छी सरकार से चले उसके लिए अच्छी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना कैबिनेट का काम होता है। ठीक है, ठीक है। कैबिनेट जो होता है इट इज अ स्मॉलर इनर बॉडी विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ही एक बहुत ही छोटी सी बॉडी होती है, इट इज इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द काउंसिल। इसमें क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। हेड जो होता है कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यूनियन कैबिनेट का काम होता है कि सुप्रीम डिसीजंस बनाता है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। एंड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट स्पेसिफिकली मेंशन द वर्ड कैबिनेट anywhere, it is based on the understandings and conventions of Britain। ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू whom? ये वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? द आंसर इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। मनी बिल जो होता है इट इज जनरली कंसर्न विद इश्यूज रिलेटेड टू टैक्सेस, बोरोइंग या मनी कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ऑडिट्स इन अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड एंड कॉन्टिजेंसी फंड्स। ठीक है, इन सबसे रिलेटेड होता है। तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की ही सहमति से मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिटरमिन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट एज स्टेटेड इन आर्टिकल 110। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who is the topmost civilian officer in government of India? होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ही इज द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और द रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी टू एक्ट एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करता है। and his major roles are included in transaction of business rules। Okay, home secretary is the administrative head of the ministry of home affairs। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? MLA इसको बोलते हैं। MLA का मेन काम क्या होता है? क्या रोड्स को कंस्ट्रक्ट कराना या कॉन्स्टिट्यूंसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना एज इज इलेक्टेड फ्रॉम, निगोशिएशंस विद द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट्स, फंडिंग एंड सपोर्टिंग, मतलब गवर्नमेंट के साथ फंडिंग और उसको सपोर्ट करने के लिए निगोशिएट करना, पंचायत को सपोर्ट करना है, डिसाइडिंग वेयर एंड व्हाट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस। द आंसर इज निगोशिएशंस विद द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट, फंडिंग एंड सपोर्ट। तो आपको क्वेश्चन आशा है, मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कराए हैं, तो इसको प्लीज जरूर करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय